यस, क्या फैक्ट्स थे जिसके बेसिस पे आपको जजमेंट लिखना था? इसका हमने इशू फ्रेमिंग ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस हो रखी है। सुरेश फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट द अश्वनी ऑन 12th December 2010. Suresh pleaded that he and Ashwani entered into an agreement to sell on 10th October 2007. Ashwani, through this agreement to sell, agreed to sell his half share in the property at measuring 5 vigas situated in the village Rampura for a total sale consideration of the rupees 5 lakhs. Suresh pleaded that he paid the rupees 1 lakh to the Ashwani at the time of the agreement to sell, and the balance sale consideration is to be paid at the time of registration of the sale deed. The sale deed will be registered on 13th December 2007. On 13th December 2007, Suresh reached at the office of the sub registrar to get the sale deed registered in his favor. He contended that on that day he having the balance sale consideration and sufficient amount for expenses to get the sale deed registered. He waited sufficiently, but Ashwani did not come, and he called upon Ashwani, but he did not pick up his call. Therefore, he sent a legal notice to the Ashwani on 15th December 2007 to resign the balance sale consideration from him, to receive the balance sale consideration from him and to get the sale deed registered in his name, but Ashwani did not get the sale deed registered in his favor. Hence, this suit has been instituted by the plaintiff. These are the averments of the plaintiff. Ashwani, that is the defendant in this suit, Ashwani denied the each and every averment of the Suresh. He denied that he entered into agreement to sell in favor of the Suresh. His signature were taken by the Suresh on some blank paper, as Suresh was previously his friend. He further contended that the said property is joint property which cannot be sold off without partition. He did not enter into any agreement to sell with Suresh. No question arises for him to be present at the office of sub registrar on 13th December 2007. He did not receive any notice, nor Suresh call him for registration of the sale deed. He also contended that if the Suresh had ready and willing to perform his part of contract, he must file the suit immediately after giving a notice, etc., and not waited for almost 3 years, frame the issues and write a judgment upon above facts. मीन्स डिफेंडेंट जो है वो एवरी अवर्मेंट्स ऑफ प्लेंटिफ उसको डिनाई करता है। वो ये भी कहता है कि नॉट एंटर इनटू द एग्रीमेंट्स, उसने कोई करार भी नहीं किया है उससे, वो सुरेश के साथ, प्लेंटिफ के साथ। उसका कहना ये कि सुरेश उसका प्रीवियसली फ्रेंड था और उसने ब्लैंक पेपर पे जो है खाली कागज़ पर उससे हस्ताक्षर करवा दिए थे। उसका कहना ये भी है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसमें पार्टीशन किए बिना इसको सेल या विक्रय भी नहीं किया जा सकता। और इस बात को रिपीट भी किया कि उसका कोई एग्रीमेंट सुरेश के साथ नहीं था। और वो ये भी कहता है कि जब उसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं था सुरेश के साथ, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसका अपीयर होने का, प्रेजेंट होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। न उसने कोई नोटिस दिया उसको, न किसी प्रकार का कॉल किया। सुरेश, हाँ, उसका कहना ये कि दिया उसने, रिसीव नहीं किया, प्राप्त नहीं हुआ, भेजा होगा उसने बट रिसीव नहीं हुआ, ये उसका कहना है। और कॉल भी उसके पास कोई आया नहीं। और लास्ट एक कंटेंशन उसका ये है कि चूंकि प्लेंटिफ स्वयं जो है वो रेडी एंड विलिंग नहीं था, वो तैयार और तत्पर नहीं था अपने भाग का पालन करने के लिए, इसलिए सेक्शन 16 ऑफ SRA के अनुसार जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिलीफ प्लेंटिफ के फेवर में दिया जाना बार्ड है, वर्जित है। ये कंटेंशन भी उसका है। इनके बेसिस पे आपको जो है वो जजमेंट लिखना है। इशू हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, दो मेन इशू तो है ही। देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड दूसरा वेदर प्लेंटिफ इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म द हिज पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड,
whether plaintiff is entitled for restraining the defendant by perpetual injunction not to transfer that property and not change the situation of that disputed property. तो ये 2-3 मेन जो है वो इश्यूज है और इसके साथ साथ एक रिलीफ का इश्यूज भी बन सकता है। हिंदी में देखेंगे हम इस कहानी को जो है, वादपत्र के और लिखित कथन के संक्षिप्त तथ्य क्या थे। ये 2024 का आरजेएस मेन एग्जाम का जो है वो क्वेश्चन है। सुरेश ने जो है संविदा की विनिर्देश अनुपालना और स्थायी व्यादेश 2 रिलीफ है और दोनों जो है एसआरए से गवर्न होंगे। संविदा की विनिर्देश अनुपालना का अनुतोष और उसके साथ साथ परपेचुअल इंजेक्शन सेक्शन 38 ऑफ एसआरए। इनके लिए एक वाद दिनांक 12 दिसंबर 2010 को जो है अश्विनी के विरुद्ध दायर किया। मीन्स सुरेश जो है वो कौन है, प्लेंटिफ है, वादी है इस सूट का, और अश्विनी जो है वो कौन है, ये डिफेंडेंट है। कौन है ये प्रतिवादी है इस है वो सूट के अंदर। कौन सी तारीख को वाद है वो संस्थित है वो किया है, वो 12/12/2010 को, और किसके संदर्भ में, ये 10/10/2007 10 अक्टूबर 2007 का एक एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और परपेचुअल इंजेक्शन के लिए एक सूट है वो फाइल किया गया। ये तारीख है वो किसकी है, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट है, और वो डेट है वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। ये वाद को संस्थित करने की तारीख है। इस विक्रय के करार के जरिए अश्विनी गांव रामपुरा में अपने आधे हिस्से की 5 बीघा भूमि कुल 5 लाख रुपए के विक्रय प्रतिफल पर विक्रय करने के लिए राजी हुआ। ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के माध्यम से उसकी जो है रामपुरा में प्रतिवादी की जो भूमि है 10 बीघा भूमि थी, उसमें से अपना आधा हिस्सा मीन्स 5 बीघा जो है, और हर बीघा जो है वो 1 लाख रुपए में, कुल 5 लाख रुपए में जो है 5 बीघा जमीन जो है वो बेचने के लिए वो एग्री हुआ, सहमत हुआ, राजी हुआ। सुरेश ने अभिवचन किया कि उसने विक्रय करार के समय अश्विनी को 1 लाख रुपए अदा किए टोकन मनी के रूप में या एडवांस मनी के रूप में, जो है साई के रूप में, जो है साई पेट है 1 लाख रुपए है वो दिए। बकाया विक्रय प्रतिफल जो 4 लाख रुपए है वो विक्रय पत्र के पंजीकरण के समय अदा करना जो है या भुगतान करना या संदाय करना तय हुआ। और विक्रय पत्र जो है या सेल डीड जो है वो कौन सी तारीख को निष्पादित होना तय हुआ था, 13/12/2007 13 दिसंबर 2007 को जो है वो पंजीकृत होना या रजिस्टर्ड करवाना तय हुआ था। दिनांक 13/12/2007 को सुरेश जो है उप पंजीयक के कार्यालय में अपने हक में विक्रय पत्र पंजीकृत कराने हेतु पहुंचता। तय तारीख पर जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेल डीड अपने फेवर में एग्जीक्यूट करवाने के लिए वादी जो है वहां जाता है, और उसका तर्क यह है कि उस दिन उसके पास बकाया विक्रय प्रतिफल मीन्स 4 लाख रुपए और विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के खर्चे, उसकी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह जो है उनका भुगतान करने की एक पर्याप्त राशि भी उसके पास थी, एक सफिशिएंट अमाउंट था 4 लाख रुपए। तो वो शेष विक्रय प्रतिफल और लगभग जो कुछ भी 1 लाख रुपए के आसपास जो है और पैसे थे उसके पास, ताकि उनका प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क, एडवोकेट की फीस वगैरह जो सेल डीड है वो उसमें एग्जीक्यूट करवाएंगे, सारा खर्चा देने के पैसे उसके पास थे। उसने पर्याप्त इंतजार किया परंतु अश्विनी नहीं आया। उसने अश्विनी को फोन मिलाया परंतु अश्विनी ने फोन भी नहीं उठाया। सफिशिएंट टाइम तक वेट किया। जब इंतजार काफ़ी हो चुका था तब उसने फ़ोन भी मिलाया, फ़ोन भी उठाया नहीं उसने। इसलिए उसने दिनांक 15/12/2007 को 15 दिसंबर 2007 को अश्विनी को एक विधिक नोटिस शेष प्रतिफल की राशि रद्द करने या प्राप्त करने, ये पेपर में भी ऐसा ही लिखा हुआ था, रद्द करने का मतलब यहाँ अब प्राप्त करने से जो है वो माने, वो विधिक नोटिस शेष प्रतिफल की राशि प्राप्त करने तथा विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत कराने का दिया, परंतु अश्विनी ने उसके हक में विक्रय पत्र ऐसा नोटिस देने के बाद भी पंजीकृत नहीं करवाया, और जिस कारण से ये वाद जो है वो वादी ने पेश किया। ये वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य, एक एग्रीमेंट था प्रतिवादी के साथ, 1 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में दिया, 5 लाख रुपए प्रतिफल की राशि थी, 5 बीघा जमीन खरीदने का करार है वो था। 13/12/2007 को विक्रय विलेख निष्पादित होना था, उस तारीख को वो उपपंजीयक के कार्यालय में गया, पर्याप्त समय तक वेट किया, पर्याप्त राशि लेके गया था, रजिस्ट्रेशन चार्ज आदि सबको है वो मिलाकर, फ़ोन मिलाया, उठाया नहीं, लीगल नोटिस दिया, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया,
और जो है वो अल्टीमेटली जब सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो उसे कंपेल होकर ये सूट जो है ये वाद प्रतिवादी के विरुद्ध संस्थित करना पड़ा। अश्विनी जो प्रतिवादी है इस बात का, उसने सुरेश के प्रत्येक कथन को क्या किया, अस्वीकार किया। एवरी अवर्मेंट ऑफ प्लेंट, प्रत्येक वाद पत्र का जो अभिवचन था, कथन था, उसको है वो डिनाई किया, अस्वीकार किया। और उसने सुरेश के हक में विक्रय के करार करने से भी इनकार किया। उसने कहा कि मैंने कोई एग्रीमेंट जो है वो सुरेश के पक्ष में या वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया। उसके हस्ताक्षर सुरेश ने खाली कागजों पर करवा दिए थे, चूंकि पूर्व में सुरेश उसका मित्र था। उसने आगे यह भी तर्क दिया कि उक्त संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति है और जो विभाजन के बिना बेचानी नहीं की जा सकती। पहले उसको अपना जो है शेयर सेपरेट करवाना होगा और उसके बाद वो सेल कर सकता है। जॉइंट प्रॉपर्टी में वो अपना शेयर जो है वो सेल नहीं कर सकता। उसने सुरेश के साथ कोई विक्रय का करार नहीं किया। उप पंजीयक के कार्यालय दिनांक 13/12/2007 को उसके उपस्थित होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता और उसको कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही सुरेश ने उसे विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के लिए कोई फोन किया। उसका कहना यह कि जब मैंने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस, मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं थी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, न मुझे कोई नोटिस मिला, न मेरे पास कोई उसका फोन आया। उसने यह भी तर्क दिया कि सुरेश संविदा के अपने भाग की पालना करने को तैयार और तत्पर था, तो उसे तुरंत ही वाद संस्थित कर देना चाहिए था 2007 में। इतना 3 साल तक का लगभग उसने वो इंतजार क्यों किया? ये इंतजार करना जो है ये उसका रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं होना है वो दर्शित करता है। ये उसका अपने भाग की पालना को तैयार होना और तत्पर होना दर्शित है वो नहीं करता है। मीन्स उसका दावा खारिज किया जाना चाहिए धारा 16 के प्रभाव से, एसआरए से। ये उसका कंटेंशन था। विचारण के दौरान सुरेश ने स्वयं को और करार के एक अनुप्रमाण साक्षी को है वो परीक्षित करवाया। ट्रायल के दौरान प्लेंटिफ एविडेंस में प्लेंटिफ ने अपना स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया और एग्रीमेंट का जो अटेस्टेड विटनेस था उसकी भी वो एविडेंस पेश की और अश्विनी ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष जो है वो डिफेंडेंट एविडेंस के रूप में वो परीक्षित करवाया। इन तथ्यों के आधार पर विवादक विरचित करी और निर्णय लिखी। ये हमने पहले कर चुके हैं, इशू है वो फ्रेम। आज की क्लास में हम जजमेंट राइटिंग पे वो कंसंट्रेट करेंगे कि इसमें निर्णय कैसे लेते हैं। जब इशू फ्रेम किए थे तो हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच ही गए थे कि कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस कंसिडरेशन का वो अमाउंट है, तो इसमें जो है वो जुरिस्डिक्शन है वो सीनियर सिविल जज का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तब होता जब 5 लाख और 1 रुपए होता, 5 लाख और 1 रुपए या उससे अधिक होता तब आर्थिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय का या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का होता। इसलिए कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो सीनियर सिविल जज। और दावा जो है किस बात का है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड परपेचुअल इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन का दावा है। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, प्लेस का नाम चूंकि रामपुरा दे रखा है, रामपुरा कोई विलेज हो सकता है वगैरह, कोई बड़ी जगह है वो नहीं है, तो इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्स हमने सिंबॉलिक नेम दिया और डेजिग्नेशन जो है वो आरजेएस। सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, और चूंकि 2010 में सूट इंस्टीट्यूट होना एडमिटेड है प्लेंट के अवरमेंट के अनुसार, तो इसलिए आपको ईयर में 2010 ही मेंशन करना है। सीएनआर नंबर /2010। देन पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। Plaintiff names is mentioned in the question. Suresh was son of, age, resident of. Then defendant name is mentioned in the question is Ashwani, son of, age and resident. Then the title of the suit, suit for a specific performance of contract and permanent injection, perpetual injection. जब पेपर में ही परमानेंट दे रखा है तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसकी जगह परपेचुअल लेके परमानेंट जो है परपेचुअल ही कंसिडर होगा। Then presence of advocates, Sri M learned advocate for plaintiff or Sri N learned advocate for defendant. Then the expression judgment and underline. In next line the date of the judgment, day, month and year. Then the para number first of judgment is the copy paste of the averments of the plaint. What are the brief facts of the plaint mentioned in the para number first of the judgment? ये सारा रेपिटेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
ये आप जो है एक लाइन ऐड कर ले, आफ्टर नेसेसरी इंक्वायरी द सूट वाज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स। सेकंड पैरा इज कंसर्न टू द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ डब्ल्यूएस। अभी हमने पढ़ाई है, कॉपी पेस्ट ही करना है, इसमें से भी कुछ समरी कर सकते हैं और इसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं आप, जो देख लेनी, अदरवाइज जितना दे रखा है उतना है वो नोट कर ले आप। और लास्ट में जो है प्रेयर फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट ऑफ प्लेंटिफ, प्रेड फॉर द डिसमिसल ऑफ द सूट या प्लेंटिफ्स सूट। थर्ड पैरा इज कंसर्न टू द इश्यूज on the basis of the above facts and pleading the issues were duly framed and explained to the parties and trial has been commenced। were या have been दोनों में से कोई भी चल जाएगा। issues have been duly framed and explained to the parties and trial has been commenced। क्योंकि हमने इश्यूज अलग से बना दिए इसके एक फॉर्मेट के अंदर, जब क्वेश्चन यह है कि इश्यू भी फ्रेम करिए एंड जजमेंट लिखिए, तो इश्यू आपको सबसे पहले अलग एक पेज में बनाने, देन जजमेंट स्टार्ट करना, और फिर जजमेंट में इश्यू का जो पैरा आ रहा है उसमें रिपीट नहीं करने हैं आपको, शॉर्ट में जैसा 2 लाइन में मैंने लिखा वैसे ही कंक्लूड करना है। देन पैरा नंबर 4 इज कंसर्न टू द एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। ड्यूरिंग द ट्रायल द प्लेंटिफ एग्जामिन हिमसेल्फ एज PW फर्स्ट एंड वन अटेस्टिंग विटनेस एज PW सेकेंड and produced the affidavit of the evidence and disputed agreement was exhibited as exhibit first। exhibit first पूरा भी लिख सकते हैं और ये EX first भी लिखेंगे तो भी जो है EXB या EX first। then during the trial the defendant examined himself as DW first and produced the affidavit of the evidence। बस शॉर्ट में चलना है आपको, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। और ये पेपर में दे रखा है, ये प्लेंटिफ ने स्वयं को एग्जामिन किया और एक अटेस्टिंग विटनेस पेश किया, हालांकि ये बात नहीं दे रखी थी, बट ये अंडरस्टूड है, ये एग्रीमेंट जो है एग्जिबिट फर्स्ट के रूप में मार्क होगा इसमें। और डिफेंडेंट साइड से केवल स्वयं डिफेंडेंट ही परीक्षित हुए, तो इतना ही लिखना है आपको, इससे एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट पैरा जो है आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज वर हर्ट या हैव बीन हर्ट एंड एडवोकेट्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट रिट्रेटेड या repeated the allegations or averments in the plaintiff and written statement। Advocate plaintiff prayed for a decree of accepting the plaintiff and advocate defendant prayed for the dismissal of the plaintiff's suit। Next para number 7, burden of proving the issue number first lies on the plaintiff and during the trial the plaintiff examined himself as PW first in respect of this issue and produced the affidavit of evidence and which is confirmed by the statement of the attesting witness PW second and disputed sale agreement exhibit first। The plaintiff has firmly stated that the sale agreement exhibit first was executed between the plaintiff and the defendant on 10th October 2007। The defendant got himself examined as DW first to rebut this evidence and produce an affidavit of evidence। No oral and documentary evidence was produced except his own। The court does not find any basis to disbelieve the statement of the plaintiff, hence the plaintiff has been successfully in proving the issue of the existence of the sale agreement and being entitled to get its specific performance। Therefore the issue number first is decided in favor of plaintiff and against the defendant। इससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने डीप में जाएंगे उतना बढ़ जाएगा, फिर दायरा, अपने पास स्पेस बहुत कम होगा। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द इशू नंबर सेकंड इज लाइज ऑन द प्लेंटिफ्स। व्हाट वाज द सेकंड इशू? रेडी एंड विलिंगनेस। द प्लेंटिफ स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल एग्जिबिट फर्स्ट ही पेड एन एडवांस अमाउंट ऑफ द ₹1 lakh एज पार्शियल सेल कंसिडरेशन एंड ऑन द ड्यू डेट 13th December 2007 the plaintiff went to the sub registrar's office to get the sale deed registered and plaintiff also stated that on that day he had sufficient money to pay the balance sale consideration and expenses for getting the sale deed registered। He called the defendant, waited for a long time, sufficient time, but the defendant did not come। A legal notice was given to the defendant on 15th December 2007। In rebuttal to this,
the defendant stated that the plaintiff was not ready and willing to perform his part of the contract and he did not institute the suit immediately. On considering the conduct of the plaintiff and the relevant circumstances, it appears to the court that the plaintiff was ready and willing to perform his part of the contract. Therefore, issue number 2 is decided in favor of the plaintiff and against the defendant. Then the burden of proving the issue number 3 lies on the plaintiff. The plaintiff has succeeded in proving the issue number 1 and 2. Therefore, a valid contract exists between the plaintiff and defendant, and plaintiff is entitled to a specific performance of the same. The plaintiff was ready and willing to perform his part of the contract. According to the plaintiff, if a perpetual injunction is not issued in his favor, then irreparable loss will be caused, and to prevent the multiplicity of proceeding, it is necessary to issue a permanent injunction, perpetual injunction. No strong evidence has been produced by the defendant in rebuttal to this. There is no basis and material to disbelieve the plaintiff's statement. Therefore, the issue number 3 is decided in favor of the plaintiff and against the defendant. And what was the issue number 3? Whether plaintiff is entitled to restraining the defendant by perpetual injunction. That was the issue number 3. That issue is also decided in favor of plaintiff and against defendant. Fourth issue, the burden of proving the issue number 4 lies on defendant. Defendant stated that the property in dispute is a joint property which cannot be sold without partition. No documentary evidence was presented by the defendant from which it appears that the property in dispute is a joint property and joint property cannot be sold without partition. In the opinion of the court, the shareholders in the joint property can sell their shares, and doing so is not prohibited by the law. Therefore, this issue is decided against the defendant and in favor of the plaintiff. Next, the para number 11 of judgment. As per the above conclusion, issue number 1 to 4 are decided in favor of the plaintiff. Plaintiff's claim is accepted or admitted, and the defendant is ordered to execute the sale deed of the 5 bighas of the land in favor of the plaintiff within the 1 month from the date of judgment, and the plaintiff should pay the outstanding sale consideration of the rupees 4 lakh to the defendant, and defendant is restrained through a permanent injunction that disputed property should not be transferred to anyone else and no change should be made in the situation of the spot. The parties should bear their respective expenses and the decree shall be made accordingly. Yes, shall be prepared, shall be drawn accordingly, and then signature of the presiding officer and the seal of the court. Means issue number 1 to 4 all are decided in favor of the plaintiff. Therefore, the suit of the plaintiff to be admitted by the court, and court grant the 2 reliefs. One relief is the specific performance of the contract in which for which the court directed to defendant to execute the sale deed in favor of the plaintiff within 1 month from the date of the judgment. Also directed to the plaintiff to pay the 4 lakh rupees the balance consideration or balance the sale price, and also issue a 1 relief granted a 1 relief perpetual injunction in favor of the plaintiff and restrain the defendant not to transfer or alienate that property to the third party, and also maintain the status quo, not change the situation of that disputed land, etc. And ultimately court directed to prepare a decree according to the directions given in the last para of this judgment, and then signature of the presiding officer and the seal of the court. This judgment, the judgment was pronounced, has been pronounced on date, month and year in open court after signature and seal, and then again the signature of presiding officer and the seal of the court. हिंदी में देखेंगे इसी प्रश्न को, या ये जो फैक्चुअल पोजीशन थी इसमें हम किस तरीके से जजमेंट है वो लिख सकते हैं. हमने ये डिसाइड कर लिया कि 5 लाख रुपए प्रतिफल की राशि इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें क्षेत्राधिकार कौन से न्यायालय का है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय का जो है
तो आपको कोर्ट में जो है न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मेंशन करना होगा। जगह का नाम चूंकि कोई रामपुरा छोटा गांव की जगह दे रखी है, बट कौन सा सब डिवीज़न है या डिस्ट्रिक्ट है ये मेंशन नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पीठासीन अधिकारी प्रतीकात्मक नाम हमने एक्स दिया है और पदनाम जो है आरजेएस है। सिविल मूल वाद संख्या वर्ष चूंकि पेपर में दे रखा है 2010 में वाद संस्थित हुआ है, तो अपना दिमाग नहीं रखना है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का ईयर है वही आपको मेंशन करना है और सीएनआर नंबर ऑब्लिक ईयर वही मेंशन करना है जो सूट के इंस्टीट्यूशन का है। वादी और उसकी विशिष्टियाँ आएगी, बीच में बनाम आएगा, फिर प्रतिवादी और उसकी विशिष्टियाँ आएगी। वादी चूंकि पेपर में दे रखा है कि सुरेश है वादी का नाम और पुत्र श्री आयु निवासी, इसी प्रकार से प्रतिवादी का भी नाम पेपर में दे रखा है अश्विनी, बाकी वाली चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पुत्र श्री आयु निवासी। फिर वाद का शीर्षक जो है वाद वास्ते संविदा की विनिर्देश अनुपालना और स्थायी व्यादेश, इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, संविदा की विनिर्देश अनुपालना और स्थायी व्यादेश हेतुवाद, संविदा की विनिर्देश अनुपालना और स्थायी व्यादेश हेतुवाद ऐसा भी लिख सकते हैं और वाद वास्ते संविदा की विनिर्देश अनुपालना और स्थायी व्यादेश ऐसा भी लिख सकते हैं। देन अधिवक्तागण की उपस्थिति, श्री एम प्रतीकात्मक नाम दिया है हमने विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी या वादी की ओर से, और श्री एन प्रतीकात्मक नाम दिया हमने विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी। इसके बाद निर्णय सेंटर में लिखा जाएगा और है वो अंडरलाइन होगा। फिर अगली लाइन में लास्ट में जाके जो है निर्णय की दिनांक आएगी, उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें मेंशन करना है और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिविल का पेपर जिस तारीख को होना वही डेट मेंशन करनी, क्योंकि आप उसी दिन जो है जजमेंट लिख रहे हैं। पैरा नंबर जो फर्स्ट है, वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्यों की कॉपी पेस्ट है, केवल एक लाइन ये जोड़ी हमने वाद पत्र के, ये भी कई बार पेपर में मिल जाती है। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ये सुरेश और अश्विनी के बीच दिनांक इतने इतने को विक्रय के लिए करार था और विक्रय के करार के जरिए अश्विनी जो है गांव रामपुर में अपने आदेश से की 5 बीघा भूमि 5 लाख रुपए के प्रतिफल पर विक्रय करने के लिए राजी हुआ। फिर बार बार सुरेश और अश्विनी की जगह मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, उसकी जगह वादी और प्रतिवादी शब्द है वो सब्सटीट्यूट कर दिए। वादी ने विक्रय के करार के समय प्रतिवादी को 1 लाख रुपए अदा कर दिए थे, बकाया विक्रय प्रतिफल। ये सारा कॉपी पेस्ट है जो हमने प्रॉब्लम में या एवरमेंट्स जो पढ़े थे प्लांट के, वो हूबहू कॉपी है, बस एक लाइन लास्ट में ये ऐड की हमने। आवश्यक जांच के बाद वाद जो है सिविल वादों के रजिस्टर में दर्ज किया गया, ये आपको ऐड करना है। सेकंड पैरा, लिखित कथन के संक्षिप्त तथ्य क्या है, ये भी पेपर के अंदर दे रखे तो आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। प्रतिवादी सुरेश ने जो है, सुरेश नहीं अश्विनी, क्या है अश्विनी, अश्विनी या अश्विनी जो कुछ भी है, बचाव का लिखित कथन है वो पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने वादी के प्रत्येक कथन को अस्वीकार किया और प्रतिवादी ने वादी के हक में विक्रय के करार से इनकार किया। उसके हस्ताक्षर वादी ने खाली कागज पर करा लिए थे, वादी पूर्व में उसका मित्र था, वही जो हमने पढ़ा है उसी का कॉपी पेस्ट है। और लास्ट में एक बात जो है वो ऐड करनी है, वादी का वाद खारिज करने की प्रार्थना की। थर्ड पैरा, विवादक से कंसर्न रहेगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर विवादक विरचित करिए और निर्णय लिखिए दोनों बातें पूछी गई थी, तो आपने अलग से एक पेज में सबसे पहले जजमेंट से भी पहले विवादक विरचित कर लिए, तो दोबारा रिपीट नहीं करना, आपको शॉर्ट में 2 लाइन में निपटाना है इस पैरा को। उपयुक्त तथ्य और अभिवचनों के आधार पर विवादक सम्यक रूप से विरचित किए गए, पक्षकारों पर व्याख्या की गई और विचार प्रारंभ हुआ। इंग्लिश में शायद अपन ने ये नहीं लिखा था, ये भी आप ऐड कर दें, एक्सप्लेन टू द पार्टी शायद की लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो इस बात को ऐड कर लेंगे। इशू फ्रेम किए गए और है वो पार्टीज पर एक्सप्लेन किए गए, इसी के साथ जो है ट्रायल कमेंस हुई। क्रिमिनल के अंदर ट्रायल कहाँ से कमेंस होती है? फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप की विरचना से। और सिविल के अंदर है वो ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से है वो स्टार्ट होती है। अब ट्रायल है तो क्या होगा? साक्ष्यवादी होगा सबसे पहले, फिर साक्ष्य प्रतिवादी होगा और फिर आर्ग्यूमेंट होगी। रियल में जो है वो फाइल किस तरीके से आगे बढ़ती है? इश्यू फ्रेम होने के बाद वादी साक्ष्य पहले पेश होता है, फिर प्रतिवादी साक्ष्य में फाइल चली जाती है, उसके बाद बहस सुनी जाती है और बहस के बाद फिर कोर्ट को अल्टीमेटली जजमेंट देना होता है। तो ये उसी क्रम में आपके जजमेंट के पैराज भी बनेंगे। विचारण के दौरान वादी ने स्वयं को पीडब्ल्यू फर्स्ट के रूप में, वादी की तरफ से जो परीक्षित होते हैं ऑरल विटनेसेस, उनको पीडब्ल्यू फर्स्ट, पीडब्ल्यू सेकंड, पीडब्ल्यू थर्ड
इस तरीके से मार्किंग होती है या इस तरीके से उनको एक नाम है वो दिया जाता है। और अनुप्रमाणिक साक्षी जो है उसका नाम दे नहीं रखा था तो हमने भी इसमें कुछ डाला नहीं, सीधा अटेस्टेड विटनेस ही एबो कर दिया, PW सेकंड के रूप में उसको परीक्षित करवाया और एक डॉक्यूमेंट भी एबो प्रदर्शित कराया। कौन सा? विवादित करार। हालांकि पेपर में नहीं दे रखा था बट सूट का बेसिस ही क्या है आपका, वाद का आधार ही वो एग्रीमेंट है, तो वो तो एग्जिबिट मार्क होगा ही होगा। तो इसलिए जो है उस विवादित जो करार है, डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, उसको एग्जिबिट फर्स्ट के रूप में जो है वो प्रदर्शित करवाया। सिविल के अंदर वादी की तरफ से जो दस्तावेज पेश होते हैं उनको एग्जिबिट फर्स्ट, सेकंड, एग्जिबिट थर्ड, एग्जिबिट फोर्थ, इस तरीके से मार्किंग होती। और डिफेंडेंट की तरफ से पेश होने वाले एग्जिबिट A1, एग्जिबिट A2, एग्जिबिट A3, ये है वो मार्किंग होती है। तो एक ही दस्तावेज जो है वो प्रदर्शित हुआ, इसलिए प्रदर्श फर्स्ट के रूप में उसे प्रदर्शित करवाया और इसके साथ ही साक्ष्यवादी बंद कर दी गई। ये लाइन आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं लिखो तो भी अंडरस्टूड है कि हाँ इतना ही एविडेंस पेश हुई है। देन प्रतिवादी ने क्या पेश किया ट्रायल में? विचारण के दौरान प्रतिवादी ने स्वयं को DW फर्स्ट, प्रतिवादी की तरफ से परीक्षित होने वाले विटनेसेस है उनकी मार्किंग कैसे होती है? DW फर्स्ट। D मीन्स डिफेंडेंट और W मीन्स विटनेस। DW फर्स्ट, DW सेकंड, DW थर्ड, DW फोर्थ। मान लो 4 साक्षी परीक्षित हुए, एक डिफेंडेंट स्वयं हुआ और 2 और पड़ोसियों को परीक्षित करवाया, एक आध कोई और को परीक्षित करवाया। तो जो सबसे पहले परीक्षित होता है और सबसे पहले सिविल में रूल क्या है? पार्टी स्वयं परीक्षित होती है। क्या होती है? ऑर्डर 18 रूल 3 या 3A, आदेश 18 के नियम 3 में या 3 क में, मोस्ट प्रोबेबली 3A में। आदेश 18 के नियम 3 क में प्रावधान है कि जो पक्षकार है वो अन्य साक्ष्यों से पहले परीक्षित होंगे। तो सबसे पहला विटनेस जो है वो डिफेंडेंट विटनेस में डिफेंडेंट स्वयं आता है और प्लेंटिफ जो है वो एविडेंस में प्लेंटिफ स्वयं आता है। तो इसलिए DW के रूप फर्स्ट के रूप में वो प्रतिवादी स्वयं परीक्षित हुआ और इसके अलावा कोई दस्तावेज, खुद का शपथ पत्र है वो साक्ष्य का ऑर्डर 18 रूल फर्स्ट के अनुसार जो है वो पेश किया गया या रूल 4 के अनुसार पेश किया गया और इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। पेपर में भी इतना ही दे रखा था, हमें इतना ही, इससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। अगला पैरा जो है, उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पिछले जो हमने जजमेंट पढ़ेंगे उसमें भी आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की एविडेंस में इस तरीके से शॉर्ट कर दें, उससे आपका थोड़ा जजमेंट शॉर्ट हो जाएगा। एप्रिसिएशन वाले में कुछ लिखने की स्थिति में आ जाएंगे आप। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता गण ने वाद पत्र और लिखित कथन के अभिकथनों को दोहराया। अधिवक्ता वादी ने वाद स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया और अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया। इतना शॉर्ट में ही चलना है। नेक्स्ट, यहां से थोड़ा, जहां साक्ष्य की विवेचना, वो पैराज थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने खंडन में क्या कहा, फिर कोर्ट की क्या राय है, ये 3 बातें आएगी हर इशू के संदर्भ में। वादी का साक्ष्य क्या पेश हुआ उस इशू के संदर्भ में, खंडन में प्रतिवादी की क्या एविडेंस आई उस इशू के बारे में, और अल्टीमेटली कोर्ट की ओपिनियन क्या है, कोर्ट का कंक्लूजन क्या है। ये तीनों स्टेजेस जो है वो आपको हर इशू के संदर्भ में है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। विवादक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है और विवादक संख्या 1 क्या है? वादी और प्रतिवादी के बीच में वैध संविदा है क्या, ये एग्जिबिट फर्स्ट, और इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए वादी है वो एंटाइटल है क्या, वादी हकदार, ये पहला इशू। तो इस विवादक को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विचारण के दौरान इस विवादक के संबंध में स्वयं को PW फर्स्ट के रूप में परीक्षित करवाया और अपना साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। हमने ऑर्डर 18 रूल 4 CPC में पढ़ रखा है कि सिविल के अंदर जो है वो चीफ कैसे होगी, है वो मुख्य परीक्षा कैसे होगी, एफिडेविट पे, शपथ पत्र पे वो होगी। तो इसलिए साक्ष्य का शपथ पत्र है वो पेश किया और ये जो वादी के कथन है और शपथ पत्र में जो बातें कही उसने, उसकी संपुष्टि जो है अनुप्रमाणक साक्षी PW सेकंड जो है उसके कथनों से भी हो रही है और विवादित विक्रय का जो करार है प्रदर्श फर्स्ट उससे भी हो रही है। वादी के जो प्लेंट के अवरमेंट है और साक्ष्य के शपथ पत्र के कथन है उनकी संपुष्टि जो है एक ऑरल विटनेस की एविडेंस से भी हो रही है PW सेकंड से, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उसको कॉर्रोबोरेट कर रही है, संपुष्टि है वो कर रही है। वादी ने दृढ़तापूर्वक ये कथन किया कि विक्रय का करार प्रदर्श फर्स्ट वादी और प्रतिवादी के बीच दिनांक 10/10/2007 को जो है वो निष्पादित किया गया और प्रतिवादी ने इसके खंडन में स्वयं को DW फर्स्ट के रूप में परीक्षित करवाया और साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया और स्वयं के अलावा कोई और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया। वादी के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार न्यायालय को प्रतीत नहीं होता।
वादी के कथन पर जो है डिसबिलीव करे या अविश्वास करे, ऐसा जो है वो कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए वादी जो है विक्रय के करार के अस्तित्व में होने और इसकी विनिर्देश अनुपालना करवाने के हकदार होने के विवादक को साबित करने में कोर्ट की राय में क्या रहा है, सफल रहा है। अतः विवादक संख्या फर्स्ट जो है वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध तय किया। प्लेंटिफ ने क्या ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की इस इशू के बारे में, रिबेटल में डिफेंडेंट ने क्या एविडेंस पेश की और कोर्ट क्या मान रहा है, किसको सही मान रहा है, वादी के साक्ष्य को सही मान रहा है या प्रतिवादी के साक्ष्य को सही मान रहा है। तथ्यात्मक स्थिति और विधि के प्रावधानों को है वो लागू करते हुए एसआरए के मैंडेटरी जो प्रोविजन है सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एटसेट्रा, जिसमें कुछ परिस्थितियों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की हो ही नहीं सकती, 14 में कोई है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉल नहीं हो रहा है, ये 16 का बार उस पर है वो लागू नहीं हो रहा है, ये ट्रस्टी की कैपेसिटी में क्या कहना चाहिए बियॉन्ड पावर या एक्सेस ऑफ पावर या अब्यूज ऑफ पावर के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट है वो किया नहीं गया है। तो इसलिए ये कहीं एक्सेप्शन में जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो रहा वहां कहीं फॉल नहीं हो रहा, ये कोर्ट की ओपिनियन है। इसलिए कोर्ट ये मान रहा है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है और इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए वादी हकदार भी है, क्योंकि ये बर्डन डिफेंडेंट पर लाई कर रहा था कि डिफेंडेंट साबित करे कि वादी जो है इस संविदा की विनिर्देश अनुपालना करवाने के लिए हकदार नहीं है। विवादक संख्या 2 जो है वो साबित करने का भार वादी पर था। और विवादक संख्या 2 क्या है, रेडी एंड विलिंगनेस, क्या वादी अपने भाग का जो संविदा में अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था या तैयार और तत्पर था। इस इश्यू को भी साबित करने का भार किस पर है, वादी पर है। वादी ने यह कथन किया कि विक्रय के करार प्रदर्श फर्स्ट के निष्पादन के समय 1 लाख रुपए आंशिक विक्रय प्रतिफल की राशि अग्रिम राशि के रूप में जो है वो उसने वो संदाय की। नियत दिनांक 13/12/2007 को वादी उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने हेतु भी पहुंचा। वादी ने यह भी कथन किया कि उस दिन उसके पास बकाया विक्रय प्रतिफल की राशि और विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने के खर्चों की पर्याप्त राशि भी थी। प्रतिवादी को फोन भी मिलाया, पर्याप्त इंतजार भी किया, परंतु प्रतिवादी नहीं आया। प्रतिवादी को 15/12/2007 को जो है विधिक नोटिस दिया और उसके खंडन में प्रतिवादी ने यह कथन किया। यह सारा जो है ये वादी के स्टेटमेंट है रेडी एंड विलिंगनेस के संदर्भ में, वादी का साक्ष्य है तैयार और तत्पर होने के। इसके खंडन में प्रतिवादी ने जो है ये कथन किया कि वादी संविदा के अपने भाग की पालना करने के लिए तैयार और तत्पर नहीं था, उसने तुरंत वाद संस्थित नहीं किया। यह प्रतिवादी का सिंपल सा कहना है, कोई इसकी सॉलिड या जो है वो स्ट्रांग कोई एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं की। अब यहां से कोर्ट का व्यू है, यहां से जो है वादी के आचरण और संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादी संविदा के अपने भाग की पालना करने के लिए क्या था, तैयार और तत्पर था। यदि उसका कंडक्ट देखें हम, 1 लाख रुपए पहले तो है वो टोकन मनी के रूप में देना, फिर निर्धारित तारीख को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना, पर्याप्त राशि जो है वो लेके जाना है वो, उसके एक्सपेंसेस भी रजिस्ट्रेशन के, सफिशिएंट टाइम तक वेट करना, फोन मिलाना, नोटिस देना, इन सभी सराउंडिंग परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए और प्लेंटिफ के कंडक्ट को देखा जाए तो कोर्ट को यह लगता है कि वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए क्या था, तैयार और तत्पर था। अतः विवादक संख्या 2 जो है वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध जो है विनिश्चित किया जाता है या तय किया जाता है। देन नेक्स्ट इश्यू नंबर 3, विवादक संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर था। और यह क्या था 3, इंजेक्शन वाला। क्या परमानेंट इंजेक्शन से जो है स्थायी व्यादेश से वो प्रतिवादी को पाबंद करवाने के लिए हकदार है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट न करे या प्रॉपर्टी की परिस्थिति में कोई है वो चेंज न करे, वहां कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह न करे, क्या ऐसा करवाने के लिए वादी हकदार है क्या? विवादक संख्या 1 और 2 वादी साबित करने में सफल रहा है, इसलिए वादी और प्रतिवादी के बीच विधिमान्य संविदा विद्यमान है और उसकी विनिर्देश अनुपालना करने का वादी हकदार भी है और वादी संविदा में अपने भाग की पालना करने के लिए तैयार और तत्पर है। ये बातें ऑलरेडी इश्यू नंबर 1 और 2 में डिसाइड हो चुकी है। तो वादी के कथन अनुसार ये थोड़ा एडिशन किया मैंने, क्योंकि अदरवाइज आप ये रिलीफ दे नहीं सकते, कुछ 38 से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। वादी के कथन अनुसार यदि शाश्वत व्यादेश उसके पक्ष में जारी नहीं किया गया तो उससे क्या होगी, इररिपेरेबल लॉस होगी, अपूर्णीय क्षति होगी, जिसको कॉम्पनसेशन इन मनी में जो है वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। और कार्रवाई की बहुलता को रोकने के लिए भी
स्थायी व्यादेश है वो जारी करना। यदि नहीं है वो परमानेंट इंजेक्शन जारी किया गया और प्रॉपर्टी का एलिनेशन वगैरह हो गया तो फिर उसको सेल डीड को कैंसिल करने आदि के लिए वो सूट लाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी जो है वो क्या है, स्थायी व्यादेश जारी करना आवश्यक है। ये वादी के अधिवक्ता का जो है वो आर्ग्यूमेंट है या स्टेटमेंट है। इसके खंडन में प्रतिवादी द्वारा कोई सुदृढ़ साक्ष्य जो है वो पेश नहीं किया गया। वादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई आधार और सामग्री है वो फाइल पर या पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः विवादित संख्या 3 भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है। मीन्स कोर्ट का मानना यह है कि इन परिस्थितियों के आधार पर वादी जो है परपेचुअल इंजेक्शन के माध्यम से डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन करने के लिए या अवरुद्ध करने के लिए हकदार है, पाबंद करवाने के लिए हकदार है। नेक्स्ट। हाँ जी सर, ये जो विवादक संख्या 3 हमने स्थायी आदेश का दिया है, इसके इस पैरा में इसमें ये चीजें ऐड नहीं करके इसको विवादक संख्या 1 के साथ ही लेके आप एक में तो दो अलग अलग रिलीफ मांगे हैं ना, तो अपन वो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसमें तो दो बातें ऑलरेडी आ गई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और फिर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए एंटाइटल है। तो स्पेसिफिक वो इशू बनना चाहिए मेरी राय में इस पर परपेचुअल इंजेक्शन का। जब स्ट्रॉन्ग केस तो बनी रहा है ना उसके फेवर में, जब कॉन्ट्रैक्ट है, टोकन मनी दे रखी है, तो स्ट्रॉन्ग केस तो बनता ही है उसके फेवर में। एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाला एक ऑब्लिगेशन तो है ही, संविदा से अब वो उद्भूत होने वाला जो है एक बाध्यता तो प्रतिवादी पर है ही कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करे और उस प्रॉपर्टी को किसी और को एलिनेट वगैरह न करे। तो इसलिए जो है परपेचुअल इंजेक्शन के लिए भी वो एंटाइटल कंसीडर होगा। विवादक संख्या 4 को जो है साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। ये तो ऐसा मामला है कि ये जब आप पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर लगभग आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नौकरी कंप्लीट हो जाती है, तब तक भी चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। तो ये एक दिन में नहीं आ जाएगी, बहुत लंबा अनुभव है, उसके बाद है वो आती हैं ये चीज़ें। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल है वो करेक्ट बता रहा हूँ कि इस पर स्पेसिफिक इशू बनेगा। हर जो है वो अनुतोष पर जो है वो स्पेसिफिक इशू बनता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अलग इशू है और परपेचुअल इंजेक्शन का अलग है, दोनों के मापदंड अलग अलग है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट से अदर देन मामलों में भी इंजेक्शन इशू हो सकता है। यस, विवादक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर। क्या था विवादक संख्या 4? विवादक संख्या 4 ये था कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है और इसको पार्टीशन किए बिना जो है सेल नहीं किया जा सकता। यह संयुक्त संपत्ति है और इसका विभाजन किए बिना इसको बेचान नहीं किया जा सकता। ये जो है वो विवादक था, इसको साबित करने का भार किस पर था? ये चूंकि कंटेंशन डिफेंडेंट लेके आया है, प्रतिवादी लेके आया है, तो इसलिए इसको साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने कथन किया कि विवाद की संपत्ति एक संयुक्त संपत्ति है और जो विभाजन के बिना विक्रय नहीं की जा सकती। प्रतिवादी के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि विवाद की संपत्ति संयुक्त संपत्ति है और संयुक्त संपत्ति को विभाजन के बिना बेचान नहीं किया जा सकता। इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिफेंडेंट ने पेश नहीं की। न्यायालय की राय में संयुक्त संपत्ति में अंशधारी अपने अंश को विक्रय कर सकते हैं। विधि में ऐसा किया जाना प्रतिष्ठित नहीं है। मान लो 5 व्यक्तियों की जॉइंट प्रॉपर्टी है और मेरा उसमें 1/5 शेयर है, मैं अपना 1/5 शेयर किसी को भी दे सकता हूं। बट जो ट्रांसफरी होगा, जो मेरे से प्रॉपर्टी ले रहा है, उसके राइट्स क्या होंगे, ये फिर आपको टीपीए में जाना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन है इसके बारे में? 42 है क्या? टीपीए में आपको एक ट्रांसफरी के राइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि जनरली उसके पास 3 राइट रहते हैं। उसका जो है एंजॉयमेंट का राइट है, पोजेशन का राइट है, एंजॉयमेंट का राइट है, पोजेशन का राइट है और एक और राइट है, वो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। नहीं, 52 नहीं है, 52 तो लिस्ट पेंडेंस है। हाँ, 3 राइट्स उसमें दे रखे हैं कि 3 अधिकार मिलेंगे। बट ड्वेलिंग हाउस के केस में केवल उसको सेपरेट जो पार्टीशन का राइट है, केवल पार्टीशन का राइट है, कॉमन एंजॉयमेंट का राइट है वो उसे है वो नहीं है। ऐसा आपने 42 में कहीं है वो पढ़ा होगा। तो इसलिए जो है इसका मतलब ट्रांसफर तो हो सकता है। ट्रांसफर कहां मना है? शेयर, एक शेयर होल्डर जो है, एक अंशधारी है, अपना शेयर दे सकता है। बट ट्रांसफरी के राइट क्या रहेंगे ये डिपेंड करेगा। ड्वेलिंग हाउस है तो फिर पहले पार्टीशन उसको करवाना होगा और उसके बाद वो
कॉमन एंजॉयमेंट के राइट वगैरह एक्सरसाइज कर सकता है। और यदि डिवेलिंग हाउस से अदर देन प्रॉपर्टी है तो फिर वो पार्टीशन का राइट भी है, सेपरेट पोजीशन का भी है और कॉमन एंजॉयमेंट का राइट भी है, सारे राइट्स है वो अवेलेबल है। तो 42 इनडायरेक्टली ये परमिट करता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी में से कोई भी शेयर होल्डर जो है या क्या कहना चाहिए अंशधारी जो है वो अपना शेयर जो है वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। तो लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है कि एक एबो शेयर होल्डर अपना शेयर किसी को जो है वो नहीं दे सकता। तो इसलिए कोर्ट की ओपिनियन ये कि ऐसा विधि में प्रतिष्ठित नहीं है कि अपना हिस्सा किसी को है वो बिना विभाजन के है वो विक्रय नहीं कर सकते, ऐसा लॉ में प्रोहिबिशन नहीं है। अतः यह विवादक प्रतिवादी के विरुद्ध और वादी के पक्ष में जो है वो तय किया जाता है। अगला जो पैरा है, पैरा नंबर 11, जो अल्टीमेटली कोर्ट का कंक्लूजन है इन 4 इश्यूज के आधार पर। उपयुक्त निष्कर्ष अनुसार विवादक संख्या 1 से 4 वादी के पक्ष में तय किए गए, वादी का दावा स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की तारीख से 1 महीने में वादी के पक्ष में विक्रय विलेख 5 बीघा भूमि या जमीन का है वो निष्पादित करे और वादी बकाया विक्रय प्रतिफल की राशि 4 लाख रुपए प्रतिवादी को अदा करे और प्रतिवादी को जरिए स्थायी व्यादेश जो है वो पाबंद किया जाता है कि विवाद के संपत्ति किसी अन्य संक्रमण न करे और मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन न करे। पक्षकार अपने अपने खर्चे वहन करे और डिक्री पर्चा तद अनुसार जो है वो बनाया जाए। कोर्ट ने जो है दोनों रिलीफ वादी के पक्ष में तय किए। जब संविदा के विनिर्देश अनुपालना का अनुतोष दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में कब वो सेल डीड एग्जीक्यूट होगी वो डे भी या वो टाइम भी फिक्स करना होता, कोर्ट की ये ड्यूटी है। तो 1 महीने का टाइम वो कोर्ट ने दिया है कि जजमेंट की तारीख से 1 महीने में आप सेल डीड एग्जीक्यूट करें। इसके साथ साथ यदि सेल कंसीडरेशन नहीं दिया गया है तो कोर्ट उसका भी डायरेक्शन जो है, पिछला एक जजमेंट पड़ा था उसमें ऑलरेडी 10 लाख रुपीज पे कर रखे थे तो उसमें हमने कह दिया कि साहब ऑलरेडी दे रखे हैं तो इसको कंसीडरेशन के अमाउंट के रूप में सेल डीड के रूप में मेंशन करें। इसमें 4 लाख रुपए बकाया, तो वादी को भी डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप 4 लाख रुपए बकाया जो विक्रय प्रतिफल की राशि ये भुगतान करें प्रतिवादी को। और इसके साथ साथ एक दूसरा रिलीफ जो है कि आप एलिनेट न करें किसी को प्रॉपर्टी और मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन न करें या यथास्थिति बनाए रखें। इसको स्थायी व्यादेश के है वो अनुतोष के माध्यम से है वो दिया गया और कोर्ट ने जो है खर्चे अपने अपने वहन करने का डायरेक्शन दिया है। कॉस्ट जो है सेक्शन 35, 35A, 35B, ऑर्डर 20A एटसेट्रा CPC में जो प्रावधान दे रखे हैं, जनरल प्रोविजन जो 35 या 20A जो है ऑर्डर, उसके अनुसार पार्टीज प्लेंटिफ में जो कॉस्ट है वो एडवोकेट फीस में, विटनेसेस पेश करने में, प्लेंट को प्रिपेयर करने, प्रिंटिंग वगैरह में खर्च किया है वो प्लेंटिफ अपना वहन करे और डिफेंडेंट ने जो अपना WS वगैरह तैयार करने में और डिफेंस एविडेंस पेश करने में एडवोकेट की फीस वगैरह में खर्चा किया वो डिफेंडेंट स्वयं है वो वहन करे। और ये जो पैरा नंबर 11 में कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया जिन अनुतोष के साथ, इनके अकॉर्डिंग ही डिक्री है वो तैयार की जाए, ये कोर्ट का है वो अल्टीमेटली डायरेक्शन। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आएगी। फिर यह निर्णय जो है आज दिनांक, महीना और वर्ष को जो है बाद हस्ताक्षर और मुद्रा खुले न्यायालय में सुनाया गया और लास्ट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आएगी। ये करेक्ट फॉर्मेट है जजमेंट राइटिंग का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, इसमें इसके साथ इंजेक्शन का रिलीफ भी था। जिस कैंडिडेट ने पिछले एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिखा है उसको मेरा मानना ऐसा है कि 6 से 7 नंबर आराम से 10 में से मिल सकते थे। अब थोड़ा बहुत उसने मिस किया है तो 4-5 नंबर मिल सकते हैं। फिर फॉर्मेटिंग उसने सही की है, कंक्लूजन गलत लिख दिए या और कुछ गलत लिख दिया उसने, तो भी 2-3 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस फॉर्मेट को आप जो है वो फॉलो करें। ये राजस्थान की जुडिशरी के अंदर जो है वो सिविल जज कैडर से लेके और डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में सभी में एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। 2 जजमेंट का कुछ फॉर्मेट सिविल जनरल रूल्स और क्रिमिनल जनरल रूल्स में चेंज भी हुआ है, बट वो कुछ जुडिशियल ऑफिसर है पुराने फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कुछ जुडिशियल ऑफिसर जो है नए फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अपन क्रिमिनल वाले जजमेंट जब देखेंगे तब कुछ नया फॉर्मेट भी देखेंगे और एक आध सिविल जजमेंट भी हम नए फॉर्मेट में देखेंगे जो है वो जनरल रूल्स में जो चेंजेज आए उस चेंजेस के साथ।